Hello friends, how are you? I hope you all are fine. I am also fine. Today I have come with a new video that is related with the correct selection of income tax return as well as correct filing of income tax return. So let's discuss. Friend, what happens? As you all know, you earned income in previous year. You earned income in previous year, and what you do, your income is assessed. Your income is assessed in assessment year. So in assessment year, what are the due dates for submission of return? There are three due dates. One is 31st October. 31st October is related with the company and any entity of which audit is required, and next is any partner of a partnership firm whose audit is required. तो इसे समझ सकते हैं कैप, CAP, कंपनी, ऑडिट एंड पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म. इनके लिए लास्ट डेट क्या है? 31st अक्टूबर. अगर ट्रांसफर प्राइसिंग में फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है और ट्रांसफर प्राइसिंग में ऑडिट हुआ है तो फिर 30th नवंबर कंपनी के केस में. बाकी जितने भी एसएससी होते हैं वो सभी एसएससीज के लिए जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट क्या है? दैट इज 31st जुलाई फॉर ऑल द एसएससीज. नाउ व्हाट हैपेंस? what will happen if you have not filed return before this due date? Suppose maximum individuals के लिए जो due date होती है वो 31st जुलाई ही होती है. तो अगर आपने नहीं सबमिट किया रिटर्न 31st जुलाई तक, तब क्या होगा? तो आप सबमिट कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न. दिस इज बिलेटेड रिटर्न. यू मे सबमिट बिलेटेड रिटर्न बाय द एंड ऑफ 31st दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर विद अ फीस डिपार्टमेंट में लेवी fees of 5,000 rupees. If your GTI gross total income is less than 5 lakh, then the fees is 1,000 rupees. Thereafter, you can also file a revised return. You can also file a revised return. If you have already submitted a return, आपने return तो submit कर दिया है, but you find any mistake or omission in your return, then you can file a revised return. The last date of revised return is also 31st December of your assessment year. Clear? Now, how many returns are there? We will discuss in detail. There are basically 7 returns and 1 new return, that is ITR-U. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and a new ITR-U. इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे देंगे, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं what is this ITR-U. Now what happens if you do not file return? If wrong form, suppose you select a wrong form of return, then you may receive a notice. You may receive a notice from the department, as well as your ITR may be rejected under section 139(9). This may be considered as your defective return, and your refund, if refund is due, then refund also may stuck if you file a wrong return. Okay, so let's move and discuss income tax returns. So before discussing income tax return, you need to understand 2 aspects. One is income tax department charges income under the 5 heads. That means आपकी सारी incomes को income tax act के according कितने heads में divide करते हैं? 5 heads में. One is income from salary or pension. Second, income from house property, that means generally rent. Annual value taxable होती है तो generally layman language में समझ सकते हैं rent from any property. देन बिजनेस और प्रोफेशन सभी समझते हैं. देन कैपिटल गेन मीन्स सपोज आपने एक बिल्डिंग परचेज की 10 लाख की और 25 लाख की सेल कर दी, तो ये जो 15 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन. एंड अदर सोर्स, जो भी इनकम इन 4 हेड्स में नहीं आती, इन 4 हेड में कवर नहीं होती, वो सारी इनकम कहाँ कवर होती है? अदर सोर्स हेड में. जैसे इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कैजुअल इनकम्स, ये सब यहाँ कवर होती है. पर्सन, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 231 डिफाइन करता है पर्सन को. तो पर्सन कितने होते हैं? कई सारे पर्सन होते हैं, जैसे इंडिविजुअल, ह्यूमन बींग्स, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी एंड ट्रस्ट. ये पर्सन्स हैं. तो सैलरीड पर्सन, एक लमसम जनरल बात समझें तो एक सैलरीड पर्सन कौन सा रिटर्न सबमिट कर सकता है? तो एक सैलरीड पर्सन रिटर्न सबमिट कर सकता है वो
रिटर्न सबमिट कर सकता है 1, 2, 3 और 4, ITR 1, 2, 3, 4। हाउस प्रॉपर्टी में भी 1, 2, 3, 4 डिपेंडिंग ऑन केसेस हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस प्रोफेशन के लिए केवल 2 ही रिटर्न है, 3 एंड 4। कैपिटल गेन है अगर आपका तो आप 2 सबमिट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। अदर सोर्स की इनकम है तो भी आप 4 रिटर्न सबमिट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। अब देखते हैं इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के लिए कौन से रिटर्न होते हैं 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स ITR 1, 2, 3, 4। HUF के लिए 2, 3, 4। पार्टनरशिप फॉर्म केवल 4, ITR 4 एंड 5। कंपनी ओनली ITR 6, 7 सम केसेस में अगर वो कंपनी ट्रस्ट है तो। AOP BOI ओनली 5 इन केस ऑफ AJP, लोकल अथॉरिटी और ट्रस्ट, इधर ITR 5 और ITR 7। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं सारे ITRs डिटेल में। सबसे पहला ITR 1 सहज, सबसे सिंपल रिटर्न, सबसे सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज सहज। सहज इसे नाम ही दिया डिपार्टमेंट ने, क्यों? बिकॉज ये आसान है, बहुत सब सिंपल होता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है। इस वीडियो को समझने के बाद आप लोग इजीली ये सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सबमिट कर सकता है, हु कैन फाइल। तो पहला तो कौन कर सकता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, रेजिडेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग 3 तरह के लोग होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं और एक NRI होते हैं। तो ये जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ये भी नहीं कर सकते, NRI भी नहीं कर सकते, केवल कौन कर सकता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से कम हो। यानी प्रीवियस ईयर में ऐसा इंडिविजुअल कर सकता है ITR 1 जिसकी इनकम 50 लाख से कम हो। इनकम कहाँ से हो सकती है, सैलरी या पेंशन से हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, लेकिन केवल एक हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा है तो ITR 2। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो सकती है, लेकिन लॉटरी और गैम्बलिंग से नहीं होनी चाहिए। लॉटरी गैम्बलिंग से है तो ITR 2। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है, लेकिन कितनी, लेस देन इक्वल टू 5000, 5000 से कम। अब क्वेश्चन आता है कौन ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। तो अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है वो नहीं कर सकता। अगर किसी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड से, हैविंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी आपके पास एक से ज़्यादा है, मोर देन 1, एक है तो कर सकते हैं। PGBP इनकम, आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है तो ITR 1 नहीं कर सकते। कैपिटल गेन से इनकम है तो ITR 1 नहीं। आउटसाइड इंडिया से कोई इनकम है, फॉरेन इनकम है तो भी ITR 1 नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, यू कैन नॉट फाइल ITR 1। अगर आपने कभी भी प्रीवियस ईयर में इक्विटी शेयर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हेल्ड किए हैं तो भी ITR 1 नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई असेट है आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी असेट तो भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी फॉरेन बैंक में साइनिंग अथॉरिटी हैं तो भी नहीं कर सकते। और अगर आपका TDS 194N यानी बैंक से आपने 1 करोड़ से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में विड्रॉ किया है तो TDS डिडक्ट होता है 194N सेक्शन में, तो आपका TDS अगर डिडक्ट हुआ है तो भी नहीं कर सकते। और आपने कोई भी किसी भी हेड से कोई लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड किया है या कैरी फॉरवर्ड किया है तो भी आप ITR 1 सबमिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं ITR 2। तो जो ITR 1 नहीं कर सकते सिंपल, वो ITR 2 कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं, इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल है वो कर सकता है। HUF भी कर सकता है। HUF ITR 1 नहीं कर सकते थे लेकिन ITR 2 कर सकते हैं, चाहे वो रेजिडेंट हो या NRI हो, कोई भी हो कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अगर किसी ने ITR 1 सबमिट नहीं कर पाया, कोई इंडिविजुअल या HUF, किस वजह से, HUF तो कर ही नहीं सकते, इंडिविजुअल किस वजह से, उसके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी थी या इनकम 50 लाख से ज़्यादा थी या हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस था, इन रीजन से अगर वो ITR 1 नहीं कर पाया तो फिर वो क्या कर सकता है, ITR 2। अब कौन नहीं कर सकते, अगर किसी की इनकम है PGBP से, यानी आपका प्रॉफिट है या बिजनेस, प्रॉफिट या गेन है बिजनेस या प्रोफेशन से, या फिर आपकी इनकम है लॉटरी या गैम्बलिंग से, तो आप ITR 2 नहीं सबमिट कर सकते। फिर देखते हैं फ्रेंड्स ITR 3। ITR 3 इज कॉमन रिटर्न, एनीवन कैन फाइल, इट इज रिलेटेड विद बिजनेस। तो बिजनेस से रिलेटेड अगर आपकी इनकम है तो कोई भी कंडीशन नहीं होती, कोई भी पर्सन बिजनेस से रिलेटेड इनकम है तो वो ITR 3 सबमिट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, इंडिविजुअल, HUF, कोई भी इंडिविजुअल HUF, कोई कंडीशन नहीं, ये डिटेल्ड फॉर्म होता है, सबसे डिटेल्ड फॉर्म यही होता है इंडिविजुअल HUF का। हु कैन नॉट फाइल, ITR 1, जो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता, 2 नहीं कर सकता और 4 अभी देखेंगे वो भी नहीं कर सकता, तो ITR 3 कर सकता है। क्लियर। फॉर एनी टाइप ऑफ इनकम, किसी भी तरह की इनकम हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह की इनकम हो, सभी तरह की इनकम के लिए ITR 3 सबमिट कर सकते हैं, चाहे इनकम सैलरी और पेंशन से हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, PGBP की इनकम हो, कैपिटल गेन हो या अदर सोर्स हो। तो ITR 3 इज अ वेरी वाइड एंड डिटेल्ड रिटर्न। नेक्स्ट देखते हैं
ITR 4 इट इज़ कॉल्ड एट सुगम। सुगम क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनकी बिजनेस से इनकम है वो ये ITR सबमिट कर सकते हैं। एक प्रिजम्पटिव स्कीम होती है, वो ऑप्ट करते हैं तो, और ये इजी रिटर्न होता है। ITR 3 के कंपैरिजन में छोटा रिटर्न होता है। तो देखते हैं हु कैन फाइल, कौन कर सकता है? इंडिविजुअल कर सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर सकती है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने चाहिए, लेकिन रेजिडेंट फर्म कर सकते हैं, फर्म भी रेजिडेंट है तो कर सकते हैं। LLP नहीं कर सकती, टोटल इनकम 50 लाख से कम है तभी कर सकते हैं। अगर वो 44AD, 44ADA और 44AE में प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम ऑप्ट करते हैं वही कर सकते हैं। अदर इनकम क्या क्या हो सकती हैं? सैलरी की इनकम हो सकती है, बिजनेस की इनकम तो है ही, उसके साथ क्या हो सकती है? सैलरी की, पेंशन की, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, लेकिन केवल एक हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो सकती है, लेकिन लॉटरी या गैम्बलिंग को छोड़ के। एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है, 5000 से कम होनी चाहिए। सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड रिटर्न एंड ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल। एक पर्सन चाहे तो ITR 3 भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन वो डिटेल्ड फॉर्म है, ये छोटा फॉर्म है, स्मॉल फॉर्म है, इजी फॉर्म है, तो ये लोग ऑप्ट कर सकते हैं, इट इज़ ऑप्शनल। अब कौन नहीं कर सकता? तो जो ITR 1 में रिस्ट्रिक्शन है, करीब करीब वही सारी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी हैं। अगर किसी की ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है प्रोफेशन में, और टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं ले सकते, और प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं ले सकते तो ITR 4 भी सबमिट नहीं कर सकते। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी हैं, आपके पास कैपिटल गेन इनकम है, या आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के, या आपने अनलिस्टेड शेयर्स एक्वायर किए, हेल्ड किए हैं प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन, आपके पास आउटसाइड इंडिया कोई असेट है, या आप साइनिंग अथॉरिटी हैं किसी बैंक अकाउंट में जो इंडिया के बाहर है, या आपका TDS डिडक्ट हुआ है 194N में, और आप कमीशन एजेंट हैं, तो कमीशन एजेंट और टीचर्स जिनकी कोचिंग से इनकम होती है वो लोग ये रिटर्न ITR 4 सबमिट नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं ITR 5 कौन सबमिट कर सकता है? 5 इज रिलेटेड विथ पार्टनरशिप फार्म। अगर फार्म है तो फार्म ITR 4 भी कर सकते हैं और ITR 5 भी कर सकते हैं। LLP केवल ITR 5 कर सकते हैं। AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज या डाइटी, ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटीज़ कर सकते हैं ITR 5। रिप्रेजेंटेटिव SSC, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव SSC है किसी पर्सन का, जैसे लिक्विडेटर होते हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी में केस जाता है तो वहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल IPs होते हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, या सिंपल सोसाइटी हैं, ट्रस्ट है जो ITR 7 में कवर्ड हैं, ट्रस्ट, उन ट्रस्ट को छोड़ के बिजनेस ट्रस्ट है या इन्वेस्टमेंट फंड हैं, ये सब ITR 5 सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ITR 6 कौन सबमिट कर सकता है? तो कंपनीज़ के लिए, सारे तरह की कंपनीज़ के लिए स्पेसिफिक ITR कौन सा है? ITR 6 कंपनीज़, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो या डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो या होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो या लिमिटेड बाय शेयर्स हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, एनी कंपनी, दैट मीन्स ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज द रिटर्न इज ITR 6। नेक्स्ट देखते हैं ITR 7। ITR 7 कौन सबमिट कर सकता है? ITR 7 स्पेसिफिक पर्सन कर सकते हैं, ट्रस्ट, रिलीजियस हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, उन्हें ITR 7 ही करना होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में जो पॉलिटिकल पार्टीज ITR 7 कर सकते हैं, रिसर्च एसोसिएशन ITR 7 ही करना है, न्यूज़ एजेंसीज ITR 7 करना है, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ITR 7 करना है। और फिर आता है ITR U, जो अभी नया रिटर्न आया है, इसके लिए हमने पूरा एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ये पूरा ITR U से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, आपके कोई कमेंट हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं, ये चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे इन कमिंग डेज। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।